ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तेर्भवती नैष्ठिकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 28, Verse 54. Hamsavaham cha tvam charya Hamsavaham cha tvam charya Sakhayo manasayo no Sakhayo manasayo no अभूतामन्तरावोकः अभूताम् अन्तरावोकः सहस्रपरिवत्सरान् सहस्रपरिवत्सरान् हंसावहं च त्वं चार्य सखायो मानसायनो अभूतामन्तरावोकः सहस्रपरिवत्सरान् हंसावहं च त्वं चार्य सखायो मानसायनो अभूतामन्तरावोकः सहस्रपरिवत्सरान् हंसावहं च त्वं चार्य सखायो मानसायनो अभूतामन्तरावोकः सहस्रपरिवत्सरान् हंसावहं च त्वं चार्य सखायो मानसायनो अभूता अंतरावोकः सहस्रपरिवत्सरान्। ओके, ऑनलाइन डिवोटीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, नम्र प्रणाम। हंसावहं च त्वं चार्य सखायो मानसायनो अभूतामन्तरावोकः सहस्रपरिवत्सरान्। हरे कृष्ण प्रभु जी, नम्र प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हंसावहं च त्वं चार्य सखायो मानसायनो अभूतामन्तरावोकः सहस्रपरिवत्सरान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हंसावहं च त्वां चार्य सखायो मानसायनौ अभूताम् अन्तरावोकः सहस्रपरिवत्सरान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम्स। हंसावहम् अहं चाहं त्वं चार्य सखाहो मानसायनौ अभूताम् अन्तरावाकौ सहस्रपरिवत्सरान्। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हंसवहं च त्वं चर्य सखायौ मनुषायनो अभूतामन्तरा वैकः सहस्र परिवत्सरान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम च त्वं चार्य सखायो मानसायनो अवतारलोका सहस्र परिवत्सरान्। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हंसावहं च तत्त्वं चार्य सखायो मानसायनो अनन्तरालोकः सहस्र परिवत्सरान्। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हम दंडवत प्रणाम। सावोहं च त्वां चार्य सखायो मनसायनौ अभूताम् अन्तरावौकः सहस्रा परिवत्सरान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हंसावहं च त्वं चार्य साख्यो मानसयोनो अभूतामन्तरावोक सहस्र परिवत्सरान्। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। Thank you everyone. We'll see synonyms. Hamsao, two swans. Aham, I. Cha, and. Tvam, you. Cha, also. Arya, O great soul. Sakhayu, friends. Manasa, Ayanu, together in the Manasa lake. Abhutam, became. Antaraha, separated. Va, indeed. Okaha, from the original home. Sahasra, thousands. Pari, successively. Vatsaran, years. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji ki Jai. My dear gentle friend, both you and I are exactly like two swans. We live together in the same heart, which is just like the Manasa lake. Although we have been living together for many thousands of years, we are still far away from our original home. Kindly repeat. My dear gentle friend, My dear gentle friend, both you and I are exactly like two swans. Both you and you I and are I are exactly like two swans. We live together in the same heart, we live together in the same heart, which is just like the Manasa lake. which is just like the Manasa lake. Although we have been living together for many thousands of years, Although we have been living together for many thousands thousands of of years, years, we are still far away from our original home. we are still far away from our original home. Purport please, Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. The original home of the living entity and the Supreme Personality of Godhead is the spiritual world. In the spiritual world, both the Lord and the living entities live together very peacefully. Since the living entity remains engaged in the service of the Lord, they both share a blissful life in the spiritual world. However, when the living entity wants to enjoy himself, he falls down into the material world. Even while he is in that position, the Lord remains with him as a super soul, his intimate friend. Because of his forgetfulness, the living entity does not know that the Supreme Lord is accompanying him as a super soul. In this way, the living entity remains conditioned in each and every millennium. Although the Lord follows him as a friend, the living entity, because of forgetful material existence, does not recognize him. Hare Krishna Prabhuji. Thank you, Mataji. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utpadkamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Saganda Nitantam Sajivam Sadvetam Savadutam
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हंसावहं च त्वं चार्य सखायो मानसायनो अभूतामन्तरावोकः सहस्र परिवत्सरान्। My dear gentle friend, both you and I are exactly like two swans. We live together in the same heart, which is just like the Manasa lake. Shri Radha Govinda Bhagwan ki jai. Although we have been living together for many thousands of years, we are still far away from our original home. So to recall, we were studying about King Prachina Barishat, King Puranjana, where Narad Muni was explaining through an allegory his own life. And the King Prachina Barishat, was so attached to his wife that at the time of death, his remembrance was the sacrifices his wife has done for him. He recalled how his wife would not eat till he has not eaten, how she would not sleep till he has not slept, how she would stand at the door waiting for him to come. So many sacrifices and attachment, and this captured his consciousness while he was about to die. And what happened? Krishna has given the formula in Bhagavad Gita, Yam Yam Vapi Smaran Bhava Taya Janta Kalevaram. Kalevar means body. So whatever you think at the time of death, you get that body. So since he was thinking about a woman, about his own wife, next birth he became a woman. And he was born as Vidarbhi, Princess Vidarbhi, daughter to King Vidarbha. And now the queen, now she's married, she's a queen, and the husband has now died. So this is the background. And before dying, they had taken Vanaprastha, and husband was undergoing severe austerities. He was eating only roots, bulbs, leaves, grass, and he had become very lean and thin. And suddenly his soul decided to leave the body, and the queen was left unattended in the jungle, in the forest, not knowing what to do. And the queen in that scenario had already committed fully to the husband and was serving him as the supreme. One of the shlokas says she was serving the husband, she accepted the husband as the supreme. Now in middle of nowhere, she is all alone and she is crying. In spite of so much of steadiness in the character, losing the husband, she is crying. And one Brahmana comes, and this knowledge is being given by that Brahmana to the crying queen. And who is this queen? In the previous life he was
King Prachina Barishat. So this is the background. Now this Brahmana is saying, why are you crying? If you see few shlokas, why are you crying? And he starts to preach the queen. And now in this shloka, he is saying, both you and I are exactly like two swans. We live together in the same heart. So probably Paramatma has come in the form of a Brahmana, and that is why he is saying we live together in the same heart. Because in the heart only two persons live. Who? Huh? Paramatma and soul. Soul and super soul, Atma and Paramatma. So nobody else can live. That is why if this Brahmana is saying we live together in the same heart, he means, वो कह रहे हैं ब्राह्मण कि मैं और आप हृदय में रहते हैं, तो ब्राह्मण और कोई नहीं, परमात्मा ही है. बट सी ब्यूटीफुल थिंग ही सेइंग, वो कह रहे हैं बोथ यू एंड आई आर एग्जैक्टली लाइक टू स्वान्स. स्वान यानी हंसा. तो वो ही सेइंग आत्मा ऑल्सो एज हंसा. ही हिमसेल्फ इज हंसा, देयर इज नो डाउट. खुद आत्मा ऑल्सो इज हंसा. अदरवाइज यू कुड हैव सेड आई एम हंसा, यू आर अ क्रो. You did not say that. Which means Atma in its original form is also Sat Chit Anand. भगवान कह रहे हैं ना, ममे वांशो जीव लोके. So how can a plenary portion of the Lord be a crow? हमसा. So Brahman saying आप और हम दोनों हंस हैं, दोनों स्वान हैं. And we live together in the same heart. हृदय में we are there. And we have been doing so for thousands and thousands of years. हजारों साल तक हम साथ में हैं. And one important thing, we are still far away from our original home. It's saying our original home. He is not saying you are far away from your original home. Brahmana is not saying to the soul, to Atma, कि आप अपने असली घर से दूर हैं. कह रहे हैं हम दोनों अपने असली घर से दूर हैं. That is why Prabhupada in the first line is saying the original home of living entity and Supreme Personality of God is the spiritual world. तो परमात्मा हमारे हृदय में है, पर परमात्मा के लिए भी कह रहे हैं कि उनका असली घर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वैकुंठ है, गोलोका है. वो तो हमारे पीछे पीछे आ गए. हमने विद्रोह किया फिर भी आ गए. That also is a very very big proof. When Krishna says Suridam Sarvabhutanam, Krishna कह रहे हैं मैं आपका सबसे अच्छा मित्र हूँ. Suridam. Will you find a friend who will leave spiritual world, his great kingdom, his palace, to come and rotten with you in a material world? No, nobody will do that. But Paramatma has done that for you. That is why he's saying both our original home is far away. Hamsa. So however difficult a situation may be, Krishna is always there for you. Suridam Sarvabhutana. See, when we are growing up, जब हम बड़े होते हैं, especially in our school or 11, 12, college, we develop friendship, good friendship with certain people, है ना, दोस्ती होती है. And what do we say to that other person? यार पूरे जीवन मेरे को छोड़ना मत, मेरे साथ रहना. Correct? Most of our lives we would have shared this with some or the other friend. See, मेरा साथ मत छोड़ना. But now in the state of life you are in, is that person with you? Probably you are with a person to whom you want, चला जा, क्यों मेरे साथ है? Correct? We are looking for friendship, we are looking for fellowship. But unfortunately in this material world there is no real fellowship, no friendship. And now that person may be doing much better than you materially or much below you materially. If he is doing much better than you, you start developing jealousy for that person. And if he is probably below you materially, you think, let me not meet him, otherwise he will ask for help and I'll have to give some money to him. This is the inner feeling we have. Now a situation where we are supposed to be the eternal servants of the Lord, but we express to the Lord our desire to enjoy. He granted that wish,
and sent you to the material world for two things. One, enjoy, at the same time teach you a lesson. But they did not leave you. Did not leave you. See, our quest, our search for a true friend is actually a futile exercise if you are looking outward. I'll share a story with you. When I was working in a company, so we were having 5-year rolling plans. So we would plan for the year. So 5 years they would plan. Next 5 years what will happen. So next 5 years requires a vision, in terms of where the country will proceed, where the economy will proceed, world economy, where it will proceed, politics and everything. So there would be a curtain raiser program, and they would call eminent personalities from industry, from other places, and they would give their vision of how things will move in the next 5 years. For example, let's say that company is making matchbox. That person will say, अरे matchbox तो अगले 5 साल में खत्म हो जाएगा, लाइटर आ जाएगा. So they will stop. See, correct, no? Matchbox अगर आप देखें, अभी घर में तो nobody is using, only for पूजा purposes में भी अगरबत्ती, और ISKCON temple you will see. Other temples में तो they started to use lighter use करना शुरू कर, है ना? तो matchbox का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो somebody has to tell कि ये जो माचिस है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, आप इस पे ध्यान मत दीजिए. अदरवाइज पता चला 1000 करोड़ की मशीनरी ले आए, एंड फॉर एग्जाम्पल अलार्म, है ना, अलार्म देखिए बंद हो गया ना मोबाइल के आने से. सो समबडी हैज टू टेल, समबडी हैज टू गिव द विजन, अरे अलार्म इंडस्ट्री बंद होने वाली है क्योंकि अगले 5 साल में मोबाइल विल सब्स्टिट्यूट अलार्म. करेक्ट? सो लाइक दैट. सो देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड प्रसून जोशी. यू मे हैव हर्ड. प्रसून जोशी is a eminent personality who writes advertisements. जो हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कोई लिखता है पहले उसको कि हम क्या स्टोरी. प्रभु, हाँ, he is a cartoonist, no? हाँ, ठीक है, चलिए कार्टूनिस्ट, whatever, he is a creative person, ठीक है. So my limited knowledge was that whatever, cartoonist or advertisement, whatever, creative person है who writes things. प्रसून जोशी. So we called him. We means not now. The company called him, and since the company I was working for was an FMCG company, fast-moving consumer goods, soap, shampoo, and this Ashirwad Atta, Sunfeast biscuit, and all that. So they wanted him to tell how to plan for the next 5 years. And now he told us a story which really, had a deep impact on me. I don't know what about others. He said, an MNC approached him. एक बाहर की कंपनी उनके पास आई and said कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिक नहीं रहा है. जैसे कोलगेट है ना माता जी, कोलगेट जब आया बोला बिक नहीं रहा है मेरा पेस्ट, तो आप कुछ ऐसा लिखिए और ऐसा हम टीवी पे दिखाएंगे कि लोग खरीदना शुरू करें. ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं बिक रहा है? So what he told, वो क्या बोले कि जो भारतीय हैं, इंडियंस, they have always been taught to look inside for happiness. भारतीयों को उनका जो पालन पोषण हुआ है हमेशा से, उनके दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी ने यही कहा है, बेटा खुशी के लिए अपने अंदर देखो, बाहर मत देखो. इसी कारण भारतीय प्रोडक्ट्स में अपनी खुशी नहीं खोज रहे थे. पहले की बात बता रहा हूँ कि मेरे पास कोलगेट टूथपेस्ट होगा तो ही मैं खुश होऊंगा, आईफोन होगा तो ही खुश होऊंगा, या मोबाइल होगा या गाड़ी होगी तो ही खुश होऊंगा. दे वर लुकिंग इनसाइड. शायद अपने भी, जब बहुत पुरानी बात नहीं है, 30 years 40 years पहले, आवर पेरेंट्स वर सेइंग नो कि व्हेन वी वर हैंकरिंग फॉर थिंग्स, नो, यू आर हैप्पी, लुक इनसाइड, लुक नीचे देखो, जो जिनके पास नहीं है उनको देखो. सो दिस पर्सन जॉब, प्रसून जोशी को क्या काम दिया गया? That you write the advertisement in such a way that you change the entire mindset of the people of India, that you have to look outside for happiness. पूरी मानसिकता बदलनी है लोगों की इंडिया में कि बाहर की चीजों से खुशी मिले. जब तक मेरे पास एक अच्छा घर नहीं है तब तक मैं खुश नहीं हूं. जब तक मैं रोज हफ्ते में एक बार बाहर रेस्टोरेंट में खाने नहीं जाता हूं तब तक मैं खुश नहीं हूं. जब तक मेरे पास 50,000 का मोबाइल नहीं है मैं खुश नहीं हूं. जब तक मैं फियामा डेविल से अपने सिर में शैम्पू नहीं करूं तब तक मैं खुश नहीं हूं. ये चीज धीरे 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 उनको लिख के उन्होंने भारतीय कंज्यूमर्स को बताया,
और फिर ऐसा हो गया, सक्सेसफुल है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बाहर की चीजों को देख के खुशी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट व्हाट आवर ट्रेडिशन, आवर शास्त्रास हैव बीन। सो ही, ये प्रसून जोशी ने हमें बताया कि दैट वाज हिज जॉब टू डू एंड ही डिड इट बिकॉज ही वाज गेटिंग मनी फॉर इट। उनको पैसा मिलता, उन्होंने अपना काम किया और हम सब बेवकूफ बन गए। बट श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि वापस हम असली जो वैदिक रूट्स है उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ के कि असली खुशी कहाँ है। तो आप देखें अंदर क्यों खुशी है, क्योंकि अंदर कौन बैठा है आपके आत्मा के साथ, परमात्मा, इसीलिए अंदर खुशी है। अंदर मतलब क्या है, कोई आपको हनुमान जी थोड़ी है फाड़ के रामचंद्र जी दिख जाएंगे, हमारा वो कंडीशन नहीं है। अंदर का मतलब है अपने हृदय में बैठे परमात्मा के दर्शन करना और उनसे खुशी प्राप्त करना, एंड टू गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट। एंड दैट इज व्हाई कृष्णा इज सेइंग सूर्यदम सर्वभूतानाम, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपका सबसे अच्छा मित्र हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात का दर्शन हमें नहीं है, वी डोंट हैव अ रियलाइजेशन, बट वास्तव में इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि आप देखें अपना भाई भी अपना नहीं है, अपनी बहन भी अपने नहीं है, यहाँ तक कि माँ बाप भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ कुछ कर जाते हैं। देखिए पिता के लिए तो नहीं जाता है। जैसे एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक माँ, एक पिता और एक बच्चे को पानी में डुबो दिया गया, ये देखने के लिए कि जब अपनी जान बचाने के लिए उस समय कौन क्या करता है। तो सब अपनी 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 जान बचा रहे थे, पिता अपनी जान अलग बचा रहा है, बच्चा अपनी जान अलग बचा रहा है। माँ जो थी वो अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। पर शास्त्र और एक लेवल आगे जाके बताते हैं स्त्री का जो स्वभाव है, प्रभु जी ने वो रोज मेरे को बताते हैं और श्लोका, कि एक स्त्री, आगे हम पढ़ेंगे कौन से कैंटो में प्रभु जी, 8वें में, 6th कैंटो में पढ़ेंगे एक शास्त्र के हिसाब से कि एक स्त्री अपने स्वार्थ के लिए अपने पुत्र, अपने पति और अपने भाई को भी मरवा सकती है। एक स्त्री के हृदय में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या है, उसकी आंखों में वो किसको देख रही है, वो क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, ये ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है, ये शास्त्र बता रहे हैं। हाँ शास्त्र बता रहे हैं। क्या थोड़ा सा श्लोक बताइए प्रभु जी। हाँ मुख, मुख जो है वो शरदकालीन कमल की तरह है, और उसका वाणी होता है वो कोयल की तरह, वाणी कोयल की तरह है। जैसे बोलते हैं हम लोग कान नहीं करते, जैसे कोई स्त्री की आवाज आती है हमारे कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, और उसका हृदय जो है वो अति तीक्ष्ण, हृदय अति तीक्ष्ण है, छुरे की तरह है, कटारी की तरह। हाँ, वो बताया तो एक श्रीधर स्वामी एक बहुत अच्छी क्लास तो माताएं, अभी आप लोग सभी कृष्णा कॉन्शियसनेस वाली माता है, आप लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये क्यों बता रहे हैं, हाँ ये इसलिए बता रहे थे इस पॉइंट पे कि हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए है इस भौतिक जगत में, सिर्फ परमात्मा जो आपके हृदय में बैठे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, अन्यथा नहीं, अदरवाइज व्हाई विल ही लीव हिज होम एंड कम हियर, वो क्यों आएंगे और आपके हृदय में बैठ कर रहेंगे आपकी गंदी गंदी हरकतों को देखने के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं देयर लाइक टू स्वॉन्स, है ना, हमने बार बार पढ़ा है कि वो दो हंस हैं, एक दूसरे को देख रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। Yet in this body there is another, a transcendental enjoyer who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter and who is known as the super soul. तो ये श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, जिसमें काफी चीजें हमें पता चलेंगी। सॉरी आई एम स्पीकिंग अ बिट इन हिंदी बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कुछ माताएं हैं जो हिंदी के लिए, बट आई नो यू ऑल अंडरस्टैंड हिंदी। उपद्रष्टा अनुमंता च, उपद्रष्टा का मतलब होता है आपको देख रहे हैं बैठ के, खाली जो आप कर रहे हैं ना, देख रहे, चोरी कर रहे हैं देख रहे हैं, किसी का खून कर रहे हैं देख रहे हैं, गंदी आदतें हैं देख रहे हैं, एकादशी के दिन अनाज खा रहे हैं देख रहे हैं, छुप छुप के स्नैक्स खा रहे हैं देख रहे हैं। फिर अनुमंता, अनुमति देने वाले। तो ये दोनों चीज में हमें लगता है विरोधाभास कभी कभी कि देख रहे हैं या अनुमति दे रहे हैं। एक देखने वाला अनुमति कैसे दे सकता है, पर परमात्मा जो है वो दोनों करते हैं, देखते भी हैं अंदर बैठ के और अनुमति भी देते हैं। कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है।
तो इच्छा के बिना मतलब उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो दोनों कार्य भगवान कर रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भर्ता मतलब वो सुप्रीम है, मास्टर है। भोक्ता मतलब वो परम भोक्ता है। और महेश्वरा, महेश्वर मतलब महा और ईश्वर। तो आप भी अपने परिवार के ईश्वर हैं, आप भी अपने परिवार के ईश्वर हैं, कंट्रोलर। तो महेश्वर, महा ईश्वर जो है वो है भगवान, जो सारे लोक और सारे देवताओं के ईश्वर हैं। परमात्मेति चाप युक्तो। चाप युक्तो का मतलब होता है जाना जाता है। किस नाम से? परमात्मा के नाम से। तो कह रहे हैं मेरे को परमात्मा के नाम से जानते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि हमारे हृदय में दो लोग बैठे हैं, एक आपकी आत्मा और एक परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। कई लोग क्या करते हैं ना, अपने आप की आरती करते हैं ऐसे, हाँ बोलते हैं हम ही भगवान है। उनको ये बताया जाता है कि हम ही भगवान है, हाँ, और हम भगवान में जाके लीन हो जाएंगे। तो वो क्या करने लगता है, अपने आप की आरती करने लग जाते हैं ऐसे। उनको लगता है मैंने भगवान को रियलाइज, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परहा, यानी एक और व्यक्ति बैठा है आपके शरीर में जिसका नाम है परमात्मा। तो माता जी विल रीड द परपोर्ट। दिस इज अ वेरी गुड श्लोक। सुप्रति माता जी। Hare Krishna Prabhuji. It is stated here that the super soul, who is always with the individual soul, is a representation of the Supreme Lord. He is not an ordinary living entity. Because the monist philosophers take the knower of the body to be one, they think that there is no difference between the super soul and the individual soul. To clarify this, the Lord says that he is represented as a Paramatma in every body. He is different from the individual soul. He is para, transcendental. The individual soul enjoys the activities of a particular field, but the super soul is present not as finite enjoyer, nor as one taking part in bodily activities, but as a witness, overseer, permitter, and supreme enjoyer. His name is Paramatma, not Atma, and he is transcendental. It is distinctly clear that the Atma and Paramatma are different. The super soul, the Paramatma, has legs and hands everywhere, but the individual soul does not. And because the Paramatma is a supreme Lord, he is present within to sanction the individual soul's desiring material enjoyment. Without the sanction of the supreme soul, the individual soul cannot do anything. The individual is Bhukta, or the sustained, and the Lord is Bhokta, or the maintainer. They are innumerable living entities, and he is staying in them as a friend. The fact is that every individual living entity is eternally part and parcel of the Supreme Lord, and both of them are very intimately related as friends. But the living entity has a tendency to reject the sanction of the Supreme Lord and act independently in an attempt to dominate nature. And because he has this tendency, he is called the marginal energy of the Supreme Lord. The living entity can be situated either in the material energy or in the spiritual energy. As long as he is conditioned by the material energy, the Supreme Lord, as his friend, the Super Soul, stays with him just to get him returned to the spiritual energy. The Lord is always eager to take him back to the spiritual energy, but due to his minute independence, the individual entity is continually rejecting the association of the spiritual life. This misuse of independence is the cause of his material strife in the conditioned nature. The Lord, therefore, he is always giving instruction from within and from without. From without, he gives instructions as stated in Bhagavad Gita, and from within, he tries to convince the living entity that his activities in the material field are not conducive to real happiness. Just give it up and turn your fate towards me. Then you will be happy, he says. Thus, the intelligent persons who places his faith in the Paramatma, the Supreme Personality of Godhead, begins to advance towards a blissful eternal life of Hare थैंक यू Krishna. माता जी। तो देखिए क्या है कि जो बार बार हम ये पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है वही चीज रिपीट हो रही है। पर आप ऐसे सोच के देखिए, एक व्यक्ति जिसने कभी भगवत गीता उठाई नहीं है, अगर वो इस तात्पर्य को पढ़ ले, उसका जीवन बदल जाएगा। कितने सारे सवाल के जवाब उसको मिल जाएंगे, है ना। हम लोग के लिए क्या रिपीटेशन हो गया है, तो हम लोग सोचते हैं क्या नया है इसमें, कुछ नया नहीं। नया तो नहीं है, पर हमारे दर्शन ही नहीं है। वी डोंट हैव एनी रियलाइजेशन, सिंगल रियलाइजेशन। कृष्णा इस भगवत गीता में कहते हैं कि आप सिर्फ मेरे को जान लो कि जन्म कर्म च मैं दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, फिर आपको जन्म लेने का और दरकार नहीं है। खाली दो चीजें कर लो,
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विधि तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। सिर्फ ये कर लो कि ये जान लो कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। तो हमने तो जान लिया, नहीं जान पाए हैं। सिर्फ ये कर लेंगे तो हमें पुनः जन्म लेने की दरकार नहीं है। तो दर्शन नहीं है, और दर्शन जो है, जो रियलाइजेशन है, वो भी भगवान की कृपा से ही होता है। तो इस छोटे से तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ बता दिया। इसीलिए आज गीता जयंती का दिन है, मोक्षदा एकादशी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। कोशिश करिए कि जिसके जीवन में भगवत गीता नहीं है उसके जीवन में भगवत गीता लेके आइए। उनको बोलिए कम से कम एटलीस्ट 1 तात्पर्य, 1 पर्पट वो पढ़ें रोज, और जब पढ़ेंगे तो उनके जीवन के कितने सारे प्रश्नों के उनको उत्तर मिल जाएंगे। तो इसमें 2 पॉइंट हमारे पास है। हम जो है आत्मा है भुक्ता। भुक्ता का मतलब होता है जिस पे कृपा की गई है और जिसको मेंटेन किया जा रहा है, और भरण पोषण जिसका किया जा रहा है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम अपना भरण पोषण खुद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, हम भुगता हैं, और भगवान के लॉर्ड इज द भोक्ता, मेंटेनर, और भगवान हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। तो ये इसमें मत रहिए कि हम अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण खुद कर रहे हैं। वास्तव में भगवान हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सोल द इंडिविजुअल सोल कैन नॉट डू एनीथिंग। भगवान की अनुमति के बिना, उपद्रष्टा अनुमंता च, अनुमंता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कई बार हमें गलतफहमी हो जाती है कि जो गलत कार्य हम कर रहे हैं क्या उसमें भी भगवान की अनुमति है। तो जैसे कई बार निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था ना, तो उसमें इस्कॉन के प्रभु जी से सबने पूछा कि भगवान की, प्रभु जी इसमें भी क्या भगवान की अनुमति है? जिसने गंदा कार्य किया और जिसके साथ गंदा कार्य हुआ, ये तो दरिंदगी है, इसमें भगवान अनुमति कैसे दे सकते हैं? तो देखिए क्या है, सच्चाई सुनने की हमारी क्षमता नहीं है, इसीलिए कई बार साधु संत चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। पर अगर सच्चाई ये है, इसमें भगवान की अनुमति है। कोई भी कार्य बिना भगवान की अनुमति के नहीं है। तो हो सकता है किसी स्त्री को पूरी बुरी तरीके से किसी ने यातना पहुंचाई और उसमें भगवान की अनुमति है। पर अगर आप ये खुलेआम मीडिया में समाज के आगे बोलेंगे तो वो समझ नहीं सकते, उनकी क्षमता ही नहीं है सुनने की, सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं है, इसलिए साधु संत चुप रहते हैं। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आप एक 2 घंटे की मूवी में बैठ गए, है ना, कुछ पहले निकल गया पोर्शन और आप देख रहे हैं एक आदमी दूसरे व्यक्ति को मार रहा है। अरे क्यों मार रहा है, ये गलत कर रहा है। फिर बगल वाला को कहते हैं नहीं नहीं, इसकी बहन के साथ उसने गलत कार्य किया था इसलिए मारे। तो बोले और मारो और मारो। तो आपको चीजें पता ही नहीं है पहले की, इसीलिए आप जो देख रहे हो गलत बोल रहे हैं। उस व्यक्ति ने, उस महिला ने, या किसी के साथ भी कुछ भी गलत, उसने पहले क्या किया है हमें क्या पता। दर्शन नहीं, खाली इस जीवन का दर्शन है, पुराने जीवनों का दर्शन। कोई देखेगा कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र क्यों मारे गए, बहुत गलत हो गया, पर उसने पहले क्या किया था किसी को पता नहीं है ना। तो पहले का हमें दर्शन नहीं है। रामकृष्ण प्रभु बार बार क्लास में क्या बोलते हैं, देयर इज नथिंग आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ कृष्णा, एवरीथिंग इज हैपनिंग विद द विल ऑफ कृष्णा। एंड प्रभुपाद जी के लास्ट शब्द भी यही थे, एवरीथिंग इज मूविंग विद द विल ऑफ कृष्णा। सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जो पीड़ित है उसके साथ आप सहानुभूति ना करें या उसको न्याय ना दिलाएं, नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से एकदम निष्फिक्र और इमोशनलेस हो के बैठ जाएं, अरे उसके कर्म है उसको भुगतने दो। नहीं जी, कर्म तो हमारे भी खराब थे, पर हम पे भी किसी ने कृपा करी और हम भक्ति में आए मतलब कोशिश कर रहे हैं भगवान। तो आप भी ऐसी कृपा दूसरों पे करिए, कर्म तो सभी के खराब है। तो कोई व्यक्ति बता रहा था, उसने YouTube पे एक छोटा वीडियो देखा जापान का एक 34 साल का युवक, उसने एक 5-6 मिनट का YouTube पे वीडियो पोस्ट किया, नाउ आई एम डाइवोर्स्ड, अभी मेरा तलाक हो गया है और मैं एक दूसरे शहर में अलग रहता हूँ। फिर बाद में वो समझाता है कि मेरी शादी 2 साल टिकी और मेरा तलाक का कारण था कि मुझे और मेरी पत्नी दोनों को एकांत बड़ा प्रिय था। We liked to be alone, एकांत प्रिय था। तो वो कह रहा था मैं अकेले निकल जाता था घूमने, मेरी पत्नी भी अकेले निकल जाती थी कहीं गार्डन में बैठ के बुक पढ़ने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। कुछ समय बाद वो मेरे को आके मेरी पत्नी कहती है
कि तुम्हारी मौजूदगी से मुझे भारीपन लगता है, इसीलिए हम डाइवोर्स ले लेंगे। एकांत प्रिय है। तो वो कह रहा अब मैं अलग एक दूसरे घर में रह रहा हूं। तो ये क्यों बता रहे हैं? दो चीजें हैं। पहला कि किसी इस भौतिक दुनिया में, भौतिक समाज में किसी व्यक्ति के साथ अगर आप उसका साथ चाहते हैं जीवन भर, कि इसके साथ रहने से मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी उन्नति हो जाएगी, मेरी प्रगति हो जाएगी, तो ये भ्रम है हमारा। क्योंकि कोई व्यक्ति आज है कल नहीं है, जैसा हमने पहले देखा। और हम अकेले भी नहीं है। कोई लगता है अलोन आई वांट टू लिव। अलोन क्या है? हमारे अंदर परमात्मा बैठे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च। पर अगर इस बात का हमें दर्शन मिल जाए कि वास्तव में हम कभी अकेले नहीं है, सूर्यदम सर्वभूतान, हमारे बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ हैं, तो इन सब चीजों से निजात पाया जा सकता है। कैसे? तब गृहस्थ जीवन जो है उसमें ये नहीं कह रहे कि गृहस्थ जीवन में आप अलग हो जाएं। तब गृहस्थ जीवन आप कृष्ण को जोड़ के देखते हैं। तब आप एक दूसरे को भोगने की दृष्टि से नहीं देखते हैं। तब आप भगवान की सेवा से एक दूसरे को देखते हैं कि चलो भगवान जो है उनकी सेवा हमें मिलके करनी है, तो हमारी पत्नी भगवान के लिए भोग बनाएगी और हम भगवान के लिए फूल लेके आएंगे, उनकी सेवा कर देंगे, अभिषेक कर देंगे। आप इसलिए साथ में हैं, एक दूसरे को भोगने के लिए साथ में नहीं है। तब गृहस्थी चलती है और तब आप और आत्मीयता के साथ और प्रेम के साथ रहते हैं। तो जब हम भगवान का नाम जप करना शुरू करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अर्थ है कि हे भगवान कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे आप अपनी सेवा में लगाएं। ये इसका अर्थ है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं बार बार, तो भगवान को भी लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा इनको सेवा दीजिए। फिर क्या होने लगता है? फिर धीरे धीरे आपको दर्शन होने लगता है। यू आर एबल टू गेट रियलाइजेशंस कि किस तरीके से भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। हम कहते हैं गुरु साधु शास्त्र, गुरु साधु और शास्त्र, इनसे हमें गाइडेंस लेनी चाहिए। बंद हो गया प्रभु जी उसका फोकस। तो एक मिनट। पर भक्तों के बीच में रह के आप देखेंगे बार बार क्या होता है, आदमी अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट करने लगता है। उसको ये लगता है कि जो मैं फैसले कर रहा हूं या जो चीज सोच रहा हूं गलत है, मुझे किसी और से पूछ लेना चाहिए। और कभी कभी ये इस हद तक पहुंच जाता है कि लगता है कि आप अपने भौतिक जीवन में तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, अच्छे से आप निर्णय ले रहे थे, अब यहाँ पे आके आप छोटे छोटे से निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका मन, आपका जो मस्तिष्क, आपका माइंड है वो आपको बहका रहा है। तो गुरु साधु शास्त्र, ऐसा पहले भी होता था। राजा महाराजा ब्राह्मण को बुलाते थे और कहते थे ब्राह्मण देव शास्त्रों में क्या लिखा है, मुझे क्या करना है। पर अभी क्या है, अभी गुरु भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, आपको बहका रहे हैं, और शास्त्र किसी को अच्छी तरीके से इंटरप्रेट करना भी नहीं आता है। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तब क्या होता है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान कह रहे हैं मैं आपको गाइड भी करने लगता हूं, धीरे धीरे अंदर से गाइडेंस मिलने लगती है हमें फ्रेंड से। तो भक्त फिर आके बताते हैं, जैसे एक बार प्रभु जी बता रहे थे, एक भक्त ने शुरू किया था चैंटिंग करना 16 माला। अभी भी वो नौकरी कर रहा था, बिजनेस था उसका, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो कुछ महीनों बाद अचानक से चैंटिंग करते करते उसके मन में आया कि ये शेयर मैं बेच दूं, और वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन करता है कि ये शेयर बेच दिए। बोला नहीं नहीं, बेचना नहीं है, अभी इसमें और मुनाफा आएगा। वो बोलता नहीं, मैं जब भगवान की माला जप कर रहा था तब मेरे मन में ख्याल आया शेयर बेच देना चाहिए, बेच दो। कोई भी उसकी बात को नहीं मान रहा था, पर उसने जबरदस्ती करके शेयर बिकवा दिए, और शेयर बिकने के कुछ दिन बाद ही उस शेयर के दाम गिर गए। तो भगवान का नाम लेते लेते उसको शेयर बेचने की प्रेरणा मिली। तो ये कोई ऐसा नहीं कह रहे कि आप भी अपने बिजनेस में भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मुझे कोई मार्केटिंग टैक्टिक्स बता दीजिए, अपना मुनाफा करने का तरीका बता दीजिए इत्यादि। पर बात यह है कि भगवान जो है वो सूर्यदम, भगवान हमारे फ्रेंड और हर पोजीशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो अगर आप भगवान के पास मटेरियल बेनिफिट्स आएंगे तो भगवान आपको
दे देते हैं। मतलब आपका जब हम फायदा करवाएंगे तभी आप मेरे पास आएंगे, तो हमने ठीक है चलो 2-4 बार इसका फायदा करवा दो, फिर ही आ जाएगा मेरे पास, इसका विश्वास बढ़ जाएगा। तो जिसको जैसे फायदा है भगवान के पास आने में, भगवान उसके साथ वैसा 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 करते हैं। जो आर्त आता है, भगवान क्या कहते हैं, आर्त अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु मेरे पास आते हैं, जो बहुत दुखी हैं, तो जब वो भगवान के पास आते हैं ना तो उनको उनका दुख कम हो जाता है, तो भगवान में श्रद्धा विश्वास बढ़ जाती है। और जब भगवान देख लें हाँ अभी थोड़ा थोड़ा परिपक्व हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, अब क्या है रियल भक्ति आपको देना शुरू करते हैं, फिर आपके दुख कम नहीं करते हैं और आप फिर भी दूर नहीं जाते हैं। जैसे विश्व युद्ध 1 के बाद क्या हुआ, लोगों ने चर्च में जाना बंद कर दिया। क्यों? भूखमरी बहुत फैल गई, लोगों के पास खाने को नहीं था, तो कह रहे थे हम तो रोज प्रार्थना कर रहे हैं, ओ लॉर्ड गिव मी माय डेली ब्रेड, पर वो ब्रेड ही नहीं दे रहे हैं, इतना मर गए सारे लोग, भगवान नास्तिक हो गए, जाना बंद कर दिया। हाँ ये सच्चाई है। तो अगर हम भगवान को सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए देखें कि मैं आया दर्शन किया चलो मुझे ये दे दो, और उन्होंने देना बंद कर दिया तो हमने जाना बंद कर दिया, तो व्यर्थ है, सब बेकार है। तो कृष्ण जो है इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो धीरे 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 आपको पास लाते हैं और फिर क्या करते हैं, कहते हैं ना पानी की बूंद ड्रॉप 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 ड्रॉप, और फिर आसन लगा के बैठ जाते हैं, अब जाएंगे नहीं, अब उठते नहीं है अब हरी रोल प्ले करना शुरू करता है। प्रभुपाद जी श्रीधर स्वामी के पास जाते थे, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, क्या ये भगवान के हेतु की कृपा है? तो श्रीधर स्वामी बोलते थे हाँ हरी अब अपना रोल निभा रहे हैं, आपसे सब हर ले रहे हैं। क्या माता जी, हम चाहते हैं भगवान सब हर ले हमसे? हाँ चाहते हैं? आपका नाम तो हरी सिंह है तो आप चाहते हैं भगवान सब कुछ हर ले? हमारा वो कैरेक्टर नहीं है कि हम चाहें भगवान सब कुछ हर ले। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण की भक्ति में आने का यही डेंजर है, भगवान तो बहुत दुख देते हैं, सब कुछ हर लेते हैं। देखिए हमारे साथ नहीं करेंगे, चिंता मत करिए, क्योंकि हमारी वो पोजीशन नहीं है। जब आपकी वो पोजीशन हो जाएगी और जब आपसे हर लेंगे ना तो आप दुख नहीं होंगे, आप सुखी हो जाएंगे, क्योंकि तब आप देखेंगे भगवान की कृपा आप पे बरस रही है। युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने कितना दिया है ना, सम्राट थे, पर उनको पता था वो उस चीज को संभाल सकते हैं, तो जब भगवान अपने धाम वापस चले गए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कहते हैं कि जो लोग अपना विष्ठा त्याग करके पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं, उसी तरीके से युधिष्ठिर महाराज ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा अपने साम्राज्य कि चलो एक बार महल देख लूं, अरे इतनी सुंदर सुंदर रानियों को देख लूं, अपने बच्चों से मिल लूं, अपने पुत्र में, बस निकल गए। भाइयों को तो बाद में पता चला, हो अच्छा युधिष्ठिर महाराज निकल गए, चलो हम भी चलते हैं पीछे पीछे, तो ये वैराग्य आ जाता है। तो क्या है सूर्यदम आज का जो मुख्य बिंदु है। आज हमने सेपरेशन का, हमारे पास समय नहीं बचा करने को, तो मुख्य बिंदु क्या है, भगवान कह रहे हैं परमात्मा की तरह मैं आपके हृदय में हूं, मैं देख रहा हूं, और आप और हम दोनों हम हैं, आप और हम दोनों हमारा जो ओरिजिनल घर है वहां पे रहते हैं, उनसे बहुत दूर आ चुके हैं हम, पर फिर भी मैं आपके साथ हूं। सूर्यदम सर्वभूता नाम, भले ही हम भगवान से कितना ही विद्रोह कर लें, उनकी अवज्ञा करें, है ना, अगर आपका घर का नौकर आपके साथ ऐसा करे, आपकी सेवा छोड़ के कहे मुझे एक अलग बंगला बना के दो, मुझे गाड़ी चाहिए, क्या आप उसके साथ रहेंगे? आप उसको धक्के मार के निकाल देंगे ना, उसके पुलिस केस कर देंगे उसके ऊपर। भगवान ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, हमें एंजॉय करने के लिए इतना सुंदर धरती दी है, पृथ्वी दी, मटीरियल वर्ल्ड दिया, और साथ ही साथ आपके साथ है भी कि जिससे हम वापस अपने घर को जा सकें। ठीक है, तो आज की चर्चा यहाँ तक रहती है। किसी भक्त को ऐसा लगता है कि हाँ उनको उनके हृदय में परमात्मा ने कभी गाइडेंस दी हो और उनको ऐसा लगा हो कि हाँ ये चीज़ तो हमारे बस की नहीं थी, पर सूर्यदम सर्वभूता नाम, भगवान ने फ्रेंड की तरह मुझे गाइड किया और मैं इस बात को एहसास कर सकता हूँ, तो आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं। हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के साथ ऐसा हुआ आपको लगा प्रभु जी कभी परमात्मा ने गाइड किया? कभी नहीं? कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ तो हुआ है? बताइए। अच्छा अभी याद नहीं है किसी को, माताओं को? Sometime you felt. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, when I sit in the Bhagavatam class, Srimad Bhagavatam classes or Srimad Bhagavad Gita classes, at that time only it happens with me, not otherwise. That you have been guided to sit for the class like that? Yeah, that's also, and it gives me some kind of intuition, which makes me prompt to reply the questions which are asked, at times. That time, yeah. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जब कोई प्रश्न का उत्तर देने के हिसाब से, कई टीचर बताते थे लेवल 1 के
कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे हमसे बच्चे, हमने कैसे उनका जवाब दे दिया, बाद में हम खुद ही सुनते हैं तो हमें लगता है अरे कैसे दे दिया, पता ही नहीं था क्या बोलना है. Normal time, if you will ask me, I may not be able to answer also. हाँ, करेक्ट. Lesson only, some intuition comes from inside only. So I Yeah. think that is definitely super soul is there which is guiding me at this time. एंड इफ वी स्टार्ट, ऐसे दर्शन हमें होने लगते हैं ना तो हमें श्रद्धा हमारी और दृढ़ होती है कि ऐसा नहीं है कि खाली हम एक थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं. भगवान कहते हैं भक्ति के लिए क्या, कि इसे आप प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम उभयम, प्रत्यक्ष रूप में आप इसके दर्शन कर सकते हैं, आप अपने जीवन में इसे होता हुआ देख सकते हैं. नहीं तो सोचिए आप, दशकों तक कोई बनावटी रूप से भक्त बन सकता है क्या? हो सकता है शुरू में आपको किसी ने बोल दिया हो, आप 2, 4, 5 साल बनावटी रूप में आप हैं, पर अगर आप दशकों तक हैं तो अंदर दर्शन है तभी तो है, नहीं तो संभव थोड़ी है, संभव नहीं है ना. ठीक है. यस विपिन प्रभु, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी, जैसे आज की स्टोरी में शुरुआत में ही आपने बताया कि सुपर सोल ऑलवेज हम कितने भी जन्म से साथ में ही रहते हैं, और हमारा सबका एक्सपीरियंस भी है कि सब लोग अपना नियर एंड डियर भी हमको छोड़ देते हैं. जब जैसे आईसीयू में है तो इवन डॉक्टर्स आर नॉट अलाउइंग टू विजिट आवर वाइफ और नियर एंड डियर ऑल्सो, बट सुपर सोल ऑलवेज साथ में ही रहता है. सेम वे जो अपने स्पिरिचुअल मास्टर जो है, दैट इज ऑल्सो लाइक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ चैत्य गुरु. So that is also, हमको पता है कि जब तक हमको मटेरियल जगत से नहीं निकाल दे तब तक स्पिरिचुअल मास्टर ऑल्सो इज कमिंग टू मटेरियल वर्ल्ड. एंड ऐसे सो मेनी एग्जांपल्स है, जैसे अपने बिल्वमंगल ठाकुर के केस में, जो स्पिरिचुअल मास्टर जो प्रोस्टिट्यूट के रूप में आए थे उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए ना. सो ऐसे मतलब देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स प्रभु जी. सो स्पिरिचुअल मास्टर आल्सो लाइक द सुपर सोल, एंड वी ऑल नो मतलब इट्स द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड ओनली. वेरी नाइस. गुरु साधु शास्त्र गुरु जी. प्रभु जी बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद. ठीक है. ममता माता जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग. ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने ये सब कृष्णा कॉन्शियसनेस के लेक्चर्स सुनना शुरू किया था. एंड आफ्टर द लॉकडाउन, आफ्टर सम टाइम, मेरी मम्मी मामा के घर गई थी और वहाँ वो बीमार पड़ गई. इट इज क्वाइट फार, मोर देन एन आवर का डिस्टेंस है. उस वक्त मेरे पापा वगैरह थे उनके साथ, उन्होंने उसको एडमिट किया, बट शाम को जब मुझे कॉल किया वहां पे उसकी कंडीशन एकदम क्रिटिकल थी. बट पता नहीं क्यों लाइक एक कॉन्फिडेंस था कि इसको कुछ नहीं होगा, बट शी विल कम बैक वेरी फाइन. ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब हुई है, बट उसके बाद भी लाइक आज जब मैं बैठ के सोचती हूँ कि मैं हर रोज वहाँ हॉस्पिटल में भी पूरा दिन बैठती थी घर पे, एंड उस वक्त मेड्स वगैरह कोई थे ही नहीं, लॉकडाउन के बाद कोई लौटा ही नहीं था. मैं वहाँ 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का ट्रैवल करके, घर का सारा काम करके, हॉस्पिटल भी अटेंड करती थी. एंड अब मैं जब बैठ के सोचती हूँ, मुझे पता नहीं है कि वो कैसे हुआ. So this is the energy, like the super soul has done it. तो ये उनकी कृपा के बिना हो ही नहीं सकता था कि मैं 2 घंटे में घर का भी काम निपटाऊं, ट्रैवल करके वहां भी पहुंच जाऊं. ये पॉसिबल था नहीं. आज अगर बैठ के सोचती हूँ तो जी वो हुआ. एंड वो जो कॉन्फिडेंस था राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट जो मुझे इन्फॉर्म किया गया, वो बहुत क्रिटिकल है, बट पता नहीं वो लाइक क्या कुछ नहीं होगा, शी इज फाइन. या थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग. आई थिंक वन मोर डिवोटी विल हियर, देन we'll end the discussion. मीनल माता जी, हरे कृष्णा. Hare Krishna Prabhuji, as Yes, you ma'am. told, the super soul is in us. We should actually experience it. Like the Gopa boy, how throughout the day they were serving Krishna, and they were in the transcendental form. Yes, Krishna is always with us, and that is the time. That is why we feel in Bhagavatam class we are very happy. Any other service to the Lord, we are very happy. So actually, the Lord is in us only, and we are very happy when we are serving Him. So every time, every minute, we can experience that transcendental bliss if we are in the service of the Lord. Yeah. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Mataji. Thank you. Because Jiver Swarupoy Krishna Nityadas. When you are situated in original position, you are always happy. Thank you, Mataji. Thank you, everyone. Vancha kalpataru
कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे